Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. Today we are going to move ahead with the lesson number 2.5 Let's March, which is actually the speech given by Kailash Satyarthi when he was awarded Nobel Peace Prize in the year 2014. So today it is the part 2 of the lesson. So come, let's get started. We can do it. You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. अब पार्ट 2 में कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक इंसान क्या कर सकता है, तो मैं बचपन की एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार जंगल में एक भीषण आग लगी थी। सारे एनिमल्स जो हैं वो भाग रहे थे। लायन जो जंगल का राजा था वो भी भाग रहा था। सडनली उसने देखा कि एक जो छोटा सा बर्ड है वो फायर की तरफ जा रहा है। तो उसने बर्ड को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो लायन को सरप्राइज़ हुआ जब बर्ड ने जवाब दिया, मैं तो वो फायर बुझाने जा रहा हूँ। तो लायन हंसने लगा और बोला कि अरे, तुम एक ड्रॉप पानी से क्या करोगे अपने बीक में लेकर। तो बर्ड एडमेंट था, मतलब कि वो ढीठ था। वो बोला कि आई एम डूइंग माई बिट, एटलीस्ट मैं एक बूंद पानी तो डालूंगी। तो 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ के ऊपर जो घूमे हैं, उन लोगों ने डिमांड किया है नया इंटरनेशनल लॉ, ताकि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है उसको हटा दिया जाए। और उसके बाद आज ही वो हुआ है। हम लोगों ने ये सब मिलकर किया है। ऐसे से बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट। दुनिया भर में एक एक करके मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। फ्रेंड्स, हम लोग एक एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और हम लोग आज पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। देन वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. Mahatma Gandhi said, "If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children." I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they, those who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" आज हम लोग एक सिंगल ग्लोबल मार्केट में हमारी चीज़ें और सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। हज़ारों फ़्लाइट्स एक दिन में इधर से उधर, उधर से इधर जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के सारे कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस डिसकनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ कंपैशन है। मतलब लोग एक दूसरे का दुख समझते नहीं हैं। क्यों ना हम लोग ये वैल्यूज़ हम लोग इनकलकेट करें और ये जो इंडिविजुअल का कंपैशन है इसको एक ग्लोबल कंपैशन में कन्वर्ट करें। मतलब सिर्फ अपने लोगों का दुख समझना नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों का दुख समझना। ये वैल्यूज़ हम लोगों को सिखानी पड़ेंगी। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। क्यों ना हम लोग पूरे वर्ल्ड में कंपैशन को फैलाएं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हम लोगों को रियल पीस पढ़ाना है पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोगों को बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं उसमें हम्बली ऐड करना चाहता हूँ, विनम्रता से ऐड करना चाहता हूँ कि चलो क्यों ना इस वर्ल्ड को यूनाइट करें हम लोग थ्रू द कंपैशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वो बच्चे हैं जो फुटबॉल स्टिच करते हैं लेकिन जीवन में कभी खेलने को नहीं मिला? कौन से वो बच्चे हैं
जो कोकोआ का हार्वेस्टिंग करते हैं लेकिन खुद कभी चॉकलेट खाने को नहीं मिला? कौन से बच्चे हैं जो ईबोला से मर रहे हैं? कौन से बच्चे हैं जो किडनैप किए जाते हैं और उनको बंदी बना के रखा जाता है? वो सारे हमारे बच्चे हैं। मुझे याद है एक 8 साल की लड़की को जब मैंने रेस्क्यू किया था, इंटर जनरेशनल फोर्स लेवल, मतलब कि फैमिली पर फैमिली, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है और उनसे काम करवाया जाता है स्टोन क्वारीज में, पत्थर तोड़ने के जो काम होते हैं वो। तो जब वो मेरे कार में बैठी थी रेस्क्यू होने के बाद, तो वो मुझे पूछती थी, उसने मुझे पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her reason is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls we will allow to go without rescue? Children are questioning our inaction and watching our actions. We need collective actions with a sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. उस बच्ची का जो एंग्री क्वेश्चन था, गुस्से में पूछा गया जो सवाल था, वो मुझे आज भी हिला के रख देता है। और वही क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख सकता है। उसका क्वेश्चन सिर्फ खुद के लिए नहीं था, हम सब लोगों के लिए था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी लड़कियों को आज हम लोग जाने देंगे राम भरोसे और उनको हम लोग कभी रेस्क्यू नहीं करेंगे? बच्चे हमारा इनएक्शन, असमर्थता क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे एक्शंस वो देख रहे हैं। हम सब लोगों को मिलके कलेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे एंड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे। हर एक सिंगल मिनट मैटर करता है, हर एक छोटा बच्चा मैटर करता है और हर एक बच्चे का बचपन मैटर करता है। इसीलिए मैं जो ये पैसिविटी है और जो पेसिमिज्म मतलब निगेटिविटी, और पैसिविटी का मतलब है कि कोई दूसरा काम करेगा, आई विल ओनली सिट पैसिवली, दैट इज़ पैसिविटी। मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस। मैं ये शांति मतलब कि हम लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी धर के क्यों बैठे हैं, मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। और ये कल्चर ऑफ पैसिविटी को चैलेंज करना चाहता हूँ। और ये जो कल्चर है न्यूट्रलिटी, इसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं इसके साइड से भी नहीं हूँ, मैं इसके अगेंस्ट से भी नहीं हूँ। आई एम न्यूट्रल, आई एम स्टेइंग आउट ऑफ इट। दिस एटीट्यूड इज़ ऑल्सो नॉट गुड। नाउ पार्ट 3 वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास।